بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے شوہر کی نوکری کیا گئی، گھر میں فاقے ہونے لگے۔ 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، ان کا دودھ، گھر کا راشن، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ روزانہ میرا شوہر نوکری کی تلاش میں باہر جاتا اور پھر خالی ہاتھ واپس لوٹتا۔ ایسے میں ان کے دوست نے تھوڑی مدد کی، چند ہزار روپے انہیں قرضے کے طور پر دے دیے۔ ایک دن میں پریشانی سے رو رہی تھی جب برابر میں رہنے والی فردوس چلی آئی۔ کیا ہوا نیلم، اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ حیران تھی تو میں روتے ہوئے کہنے لگی، کیا تمہیں علم نہیں، تمہارے بھائی کی نوکری چلی گئی ہے؟ 1 مہینہ ہونے کو ہے۔ تو وہ افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگی، ہاں مجھے پتا ہے کہ شاکر بھائی کی نوکری چلی گئی ہے، لیکن دیکھو کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جائے گی، تم گھبراؤ مت۔ کہاں سے ملے گی نوکری؟ گھر کے حالات دیکھو، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ اب فردوس بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، اچھا تم پریشان مت ہو، کھانے پینے کا سامان میں تمہیں اپنے گھر سے لا دیتی ہوں۔ میں اس سے یہ احسان لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن بچوں کا بھوکا چہرہ بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا، اس لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سچ میں ہی اپنے گھر سے راشن اور بچوں کا ایک دودھ کا پیکٹ لا کر دیا تو میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن ساتھ ہی حیران بھی ہوئی۔ کل تک تو فردوس جس کے چپکے چپکے میں مدد کیا کرتی تھی، جس کا شوہر جواری تھا، وہ خود کسی کے گھر میں کام کاج کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی، لیکن آج اس کے گھر میں راشن کی بہتات تھی۔ میں حیران تھی کہ اس کے حالات اتنے کیسے بدل گئے۔ وہ اچھے کپڑوں میں بھی نظر آ رہی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، دعا کرو کہ تمہارے بھائی کی نوکری لگ جائے۔ اس نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، نوکری بھی لگ جائے گی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ کسی دن تم میرے ساتھ چلنا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کہاں پر لے کر جانا چاہتی ہو مجھے؟ تو فردوس کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، گلی کے نکڑ پر ایک عامل بابا بیٹھتا ہے، اتنا اچھا تعویذ دیتا ہے کہ دن رات بدل جاتے ہیں۔ تم بھی میرے ساتھ چلنا، شاکر بھائی کی نوکری کے لیے تعویذ لے لینا، دیکھنا چند دن میں ہی انہیں نوکری مل جائے گی۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، اس لیے فردوس سے کہنے لگی کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ اب مجھے ہی دیکھ لو، تمہیں خود معلوم ہوگا کہ کیسے میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رکھتی تھی، بچے میرے کھانے کو ترستے تھے، لیکن جب سے میں نے اس عامل بابا سے دعا کروائی، ان کی دعا ایسی لگی کہ آج میرے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اب میں خاموش تھی، گھر کے حالات ہی اتنے برے تھے کہ پھر دوست کی باتیں مجھ پر اثر انداز ہونے لگی تھی، اور پھر 2 دن بعد ہی میں اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کسی اور ہی دنیا میں لے کر جانے والی ہے، جو ہماری دنیا سے بالکل الگ ہوگی۔ میرا نام نیلم ہے، میں ایک شادی شدہ 30 سالہ عورت تھی، میرے 2 بچے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ میرے شوہر کی نوکری بہت اچھی تھی، وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں نوکری کرتے تھے، لیکن اس طرح سے ان کی نوکری چلی جائے گی یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے ماں باپ کے گھر میں بھی خوب تنگی دیکھی تھی، کیونکہ ہم 7 بہن بھائی تھے، جس میں میرا نمبر 5 کا تھا۔ شروع سے ہی زندگی میں نہ کبھی مجھے اچھا پہننا اوڑھنا نصیب ہوا، نہ ہی کھانا پینا۔ میں نے ایک قسم پرسی کی زندگی گزاری تھی۔ پھر 17 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تو رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میرے شوہر مجھ سے پورے 10 سال بڑے تھے، لیکن پھر بھی میں نے سمجھوتا کر لیا، اور جب ہمارے 2 بچے ہو گئے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ سسرال والوں کا بھی کوئی اپنا ذاتی مکان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی میرے دیور جیٹھوں کی شادیاں ہوتی رہیں، اس دوران میری ساس سب کو الگ کرتی رہی اور ہم بھی کرائے کے گھر میں آ گئے۔ اب شاکر کی تنخواہ میں گھر کا کرایہ بھی دینا ہوتا اور گھر کا گزارا بھی کرنا، جو کہ بہت مشکل تھا، اور مہنگائی بھی اس قدر ہو گئی تھی کہ اب دن رات ہم پر بھاری ہو گئی تھی۔ لیکن اچانک سے ان کی نوکری چلی جائے گی، یہ 1 مہینے پہلے کی بات تھی۔ میں تو نفسیاتی مریض بن کر رہ گئی تھی۔ اگر فردوس جیسی سہیلی کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں خودکشی بھی کر لیتی، لیکن وہ ہر موڑ پر میری مدد کرتی تھی، اس لیے اس کی بات مان کر ہی میں اس عامل کے پاس جانا چاہتی تھی۔
जिससे वो तावीज़ लेकर आई थी। मैं भी शाकिर के लिए ऐसा तावीज़ बनाना चाहती थी जिससे उनकी नौकरी का मसला हल हो जाए, लेकिन वहां जाकर देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझ जैसी न जाने कितनी औरतें उसके आस्ताने पर ऐसे मक्खियों की तरह भिनक रही थीं, जैसे उनका पड़ाव हमेशा से यहीं पर हो। मैं भी एक कोने में सिमट कर बैठ गई। तभी फिरदौस कहने लगी, मेरी इस आमिल से अच्छी जान पहचान है, इसलिए वो तुमसे फीस नहीं लेगा, वरना सबसे बहुत फीस लेता है, हजारों रुपए में। उसने मुझे डरा दिया था। फिर मैं शुक्र अदा करने लगी कि फिरदौस मेरे साथ है। जैसे ही मैं उस आमिल के पास गई तो उसे देखकर मुझे बहुत घिन आई, क्योंकि वो कहीं से भी कोई नेक आमिल नहीं लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, शैतानी चेहरा, लाल लाल सी आंखें जो हर औरत को ऐसे घूर रही थी जैसे उसका पोस्टमार्टम कर रही हो। दिल तो चाह रहा था कि मैं ऐसे ही चली जाऊं, लेकिन अपना मुद्दा बयान करना भी बहुत जरूरी था। इसलिए उस आमिल बाबा से कहने लगी कि मेरे शौहर की नौकरी नहीं है, आप कोई ऐसा तावीज़ दे दें जिससे उसकी नौकरी का मसला हल हो जाए। तभी उसने अपना भारी हाथ मेरे सर पर रखा तो मुझे अपना जिस्म अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसे लगा जैसे किसी ने हथौड़ा मेरे सर पर रख दिया हो। फिर वो कहने लगा, हो जाएगा मसला हल बीबी, परेशान मत हो, बस हर जुमेरात को मेरे आस्ताने पर जरूर आना है। मैं सर हिलाकर घर लौट आई थी, लेकिन रास्ते में फिरदौस से कहने लगी, न जाने ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिरदौस जल्दी से कहने लगी, अरे वो जगह ही ऐसी है, वहाँ पर और भी तो औरतें आती हैं अपना अपना मसला लेकर, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन चंद दिनों में ही तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। अब मैं फिरदौस की बात से बेफिक्र हो गई थी। फिर उस दिन मेरा शौहर आया, हमेशा की तरह मायूस। मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी, अल्लाह ही कोई सबब निकालेगा। लेकिन वो आज बहुत गुस्से में लग रहे थे। तकिया मुंह पर रखे सोते रहे, जबकि मैं बच्चों को बहलाती रही। लेकिन दूसरे दिन जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। जैसे ही मैंने उठकर चाय वगैरह बनाई, बच्चों को चाय बिस्किट का नाश्ता दे दिया और खुद घर की सफाई करने लगी। जैसे ही अपना बिस्तर उठाने लगी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे तकिए के नीचे नोट पड़े हुए थे। ये पैसे मैंने खुद से तकिए के नीचे रखे भी नहीं थे और ना ही मेरे घर में मेरे पास 1 रुपया था। मुझसे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। अचानक ही घबराहट सी होने लगी, भला मेरे तकिए के नीचे ये पैसे कहाँ से आए। मेरे शौहर जो आज फिर नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे थे, वो मुझे कहने लगे, नीलम तुम्हारे पास 100-200 रुपए पड़े होंगे किराए के लिए, बसों में धक्के खाना भी आसान नहीं है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए जल्दी से कहने लगी, जी जी मेरे पास हैं। मैंने जल्दी से उन पैसों में से 2-3 नोट अपने शौहर को पकड़ा दिए। कहने लगा, ये पैसे कहाँ से आए? क्या फिरदौस ने तुम्हें उधार दिया था? मैंने हाँ में सर हिला दिया था। अभी तक मुझे समझ नहीं आई थी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। फिर वो पैसे मैंने संभाल कर रख दिए, बल्कि घर में बच्चों की चीजें वगैरह मंगवा ली और थोड़ा सा राशन भी। जाए नमाज लेकर बैठ गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी जिसने गैबी मदद की थी। अभी तक मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं फिरदौस से इस बात का जिक्र करूं या नहीं? अगर जिक्र कर दिया तो कहीं ये नेमत मुझसे ना छिन जाए। यही सोचकर मैं खामोश रही। दूसरे दिन फिरदौस चली आई और कहने लगी, फिर उस जुमेरात को आमिल बाबा के पास जाने का इरादा है भी या नहीं, मुझे बताओ, वरना फिर मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं उससे कहने लगी, हाँ हाँ मैं भी जाऊंगी। ये सुनकर वो मुतमईन हो गई थी। वो रात मेरे लिए बहुत खुशी लेकर आई थी, इसलिए मैं खुशी खुशी सारे घर का काम निपटा रही थी। दिल में ख्याल आया, पैसे हों तो इंसान के कितने बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। फिर उस रात मैं सो रही थी, लेकिन जब मैंने अपनी चारपाई के पास किसी को खड़ा हुआ महसूस किया। मेरे बराबर में ही शाकिर सो रहे थे, गहरी नींद में। हम दोनों के पास हमारा एक बच्चा सो जाता था। हमारे घर में सिर्फ 2 ही चारपाइयाँ थीं। ऐसे में जब मेरी हल्की सी आहट से आंख खुली तो तब मैंने किसी की खौफनाक परछाई अपनी चारपाई के गिर्द महसूस की। एकदम से ही मैंने आंखें खोलकर देखा। अजीब सी बू पूरे घर में फैली हुई थी। मुझे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। तभी अचानक मेरी नजर घड़ी पर पड़ी और रात के 3 बज रहे थे। ऐसे में भला कौन मेरे घर में हो सकता है?
اس سے پہلے کبھی مجھے اپنے گھر میں ایسا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہی سوچ کر میرے حواس جاتے رہے۔ جلدی سے میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھتے پڑھتے بھی مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ بمشکل میں نے نماز مکمل کی اور جلدی سے آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ صبح میرا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا۔ پھر میرے شوہر تو چلے گئے اپنے دوست سے ملنے، کیونکہ انہوں نے اسے نوکری کا بتایا تھا، کہیں انٹرویو دینے جانا تھا۔ لیکن میں گھر کی صاف ستھرائی کرنے لگی۔ رات والی بات سوچ کر میرا سر بھاری ہو رہا تھا، لیکن اچانک ہی میری نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ڈھیروں نوٹ تھے اور وہ نہ جانے کہاں سے اتنے سارے نوٹ لے کر آ رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے سے کہنے لگی، اذان یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو اس نے تکیے کی طرف اشارہ کیا۔ آج میں نے بستر بھی نہیں اٹھایا تھا کیونکہ ابھی میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی میں نے تکیہ اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آج پھر تکیے کے نیچے ڈھیروں نوٹ رکھے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ پھر میں نے وہ سارے نوٹ حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی جا کر فردوس کو یہ بات بتا دوں، لیکن دل میں خیال آیا کہ کہیں پھر جو مدد ہو رہی ہے وہ نہ بند ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں نے فردوس کو کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ وہ سارے نوٹ اپنے پاس جمع کر لیے۔ تبھی گھر میں آج میں نے گوشت منگا لیا تھا۔ آج پورے 2 مہینے بعد گھر میں گوشت بنا۔ اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ فردوس بھی چلی آئی، کہنے لگی، ارے واہ، وارے نیارے ہو گئے تمہارے تو، آج گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کہ شاکر بھائی کی نوکری لگ گئی ہے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں، وہ دراصل میرے بھائی نے تھوڑے پیسے بھجوائے تھے، بس انہی پیسوں سے گوشت منگا لیا، آج بہت دل چاہ رہا تھا۔ تو فردوس مسکرا کر کہنے لگی، ہاں، آہستہ آہستہ حالات اچھے ہو جائیں گے، بس صبر کرتی رہو، اور دیکھو اس عامل بابا کے پاس جانا نہ چھوڑنا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ تھوڑا سا سالن فردوس کے گھر بھی بھجوا دیا، لیکن جب میرا شوہر شام کو آیا تو وہ حیران رہ گیا۔ بڑی خوشی اس نے کھانا کھایا اور کہنے لگا، آج اتنے دنوں بعد میں نے اپنے بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھی ہے، اور تمہارے چہرے پر بھی چمک ہے۔ کیا راز ہے؟ سچ بتاؤ، یہ پیسے فردوس نہیں دیے تھے نا؟ میں نے ان سے جھوٹ کہہ دیا تھا کہ ہاں، میں نے اسے تھوڑے پیسے ادھار لیے تھے، میں بعد میں اس کے پیسے دے دوں گی جب آپ کی نوکری لگ جائے گی۔ تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگے، نہ جانے کب نوکری لگے گی، میں تو مارا پھر رہا ہوں، اوپر سے مالک مکان بھی تنگ کر رہا ہے۔ سچ میں ہی میرے شوہر بیچارے بڑے پریشان تھے، لیکن اگلی رات جو کچھ ہوا تھا وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ جب میں سو رہی تھی تو اچانک مجھے اپنے بازوؤں پر دباؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی میرے کندھے پر جھکا ہوا ہو۔ میں سو رہی تھی، نیند میں بھی میری آنکھیں بھاری ہو رہی تھی۔ میں نیند میں مسلسل بولی جا رہی تھی، چھوڑو مجھے، کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے؟ میری بڑبڑاہٹ سن کر شاکر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ مجھے اٹھا رہے تھے۔ اٹھو نیلم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جو احساس نیند میں مجھ پر چھایا ہوا تھا اب وہ مٹ چکا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ چھوڑ دو مجھے، کون تمہیں تنگ کر رہا تھا؟ اب وہ بھی پریشان لگ رہے تھے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں، کوئی نہیں، میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، شاید اسی لیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ۔ ان کی ہدایت پر میں نے ایسے ہی کیا۔ جب تک نیند نہ آئی درود شریف اور آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ صبح میں فجر کی نماز پڑھی اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتی رہی۔ اب میرا ذہن قدرے پرسکون تھا، لیکن یہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ چند پیسے جو جمع ہوئے تھے، جو نہ جانے عامل بابا کی وجہ سے مجھے مدد ملی تھی یا کوئی اور وجہ تھی، مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ بس وہ پیسے میں نے شاکر کو دے دیے تھے تاکہ وہ کرایہ دے دے۔ اس نے وہ کرایہ دے دیا تھا اور مالک مکان نے ہماری جان چھوڑ دی تھی۔ ہمارے لیے یہی بہت تھا۔ لیکن جمعرات بھی آ گئی تھی۔ پھر فردوس کہنے لگی، آج ہم عامل بابا کے پاس چلیں گے۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی، شاکر آج گھر میں ہی تھے، تو میں ان سے کہنے لگی، میں فردوس کے ساتھ ذرا رقیہ باجی کے گھر جا رہی ہوں،
ان की तबीयत मालूम करने। वो बहुत बीमार हैं। मैंने उनसे झूठ बोला था, हालांकि मैं शाकिर से कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेकिन अब न जाने क्या हो रहा था कि मैं उनसे झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। उन्होंने मुझे इजाजत दे दी थी। वो इतने अच्छे थे कि कभी उन्होंने किसी बात पर मुझे रोका टोका नहीं था। अब मैं फिरदौस के साथ उसी आमिल बाबा के आस्थाने पर चली आई। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने बैठी तो अचानक उसने फिरदौस को बाहर जाने का कह दिया। अब मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे, क्योंकि न जाने क्यों ये आमिल और उसका मुरीद मुझे बहुत अजीब लगता था। उसकी शैतानी फितरत देखकर ऐसा महसूस होता जैसे ये मेरे बारे में कुछ गलत सोचता है। तभी वो आमिल फिरदौस के जाने के बाद मेरे कान में सरगोशी से कहने लगा, क्यों उसे अपने करीब नहीं आने देती? देखो, ऐसे वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये सुनकर हैरत से मैं उछल पड़ी थी। ये आप क्या कह रही हैं आमिल बाबा? मैं आपकी बात नहीं समझी। तो आमिल मुझे घूरते हुए कहने लगा, तू इतनी नादान तो नहीं है। एक औरत है, वो भी शादीशुदा। यूं समझ ले कि वो जब जब तेरे करीब आने की कोशिश करता है तो उसे दूर भेज देती है। देख, वो तुझसे खुश नजर नहीं आ रहा। वो तेरी मदद करना छोड़ देगा। वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे उन्होंने साफ लफ्जों में नहीं कहा था, लेकिन न जाने क्यों मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। फिर वो कहने लगा, अगर तुझे कुछ ऐसा वैसा महसूस हो कि तूने मुंह से आवाज नहीं निकालनी, ये बात याद रखना। इस तरह वो तुझसे नाराज नहीं होगा। मैंने बमुश्किल हाँ में सर हिलाया और बाहर आ गई। मेरे चेहरे पर बला की परेशानी थी। फिर दोस्त बार बार मुझसे पूछ रही थी कि आमिल ने मुझे बाहर क्यों भेज दिया था। उसने तुझे ऐसा क्या कहा जो वो अकेले में कहना चाहता था? लेकिन मैंने उसकी बात गोल मोल कर दी और उसे नहीं बताई, जो मुझे खुद समझ नहीं आई थी। लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं आइंदा उस आमिल के आस्थाने पर नहीं आऊंगी, भले कुछ भी हो। लेकिन अगली रात मैं सो रही थी जब ऐसा महसूस हुआ जैसे फिर से मेरी चारपाई के पास कोई खड़ा है। तभी मेरे कानों में आमिल की आवाज आई, भले तुझे कुछ भी महसूस हो, तूने मुंह से आवाज नहीं निकालनी। अब मैंने ऐसा ही किया और मुंह से आवाज निकाली ही नहीं। लेकिन अचानक ही मेरी जुबान से दरूद शरीफ जारी हो गई। मैं बार बार दरूद शरीफ पढ़ रही थी और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। फिर एकदम से ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने उठकर देखा, मेरे आसपास कोई भी नहीं था। ये सिर्फ मेरा वहम था और कुछ नहीं। फिर मैं फजर तक जागती रही और फजर की नमाज पढ़कर ही सोई। लेकिन अगले दिन जैसे ही मैंने अपना तकिया उठाया तो पैसे वहाँ मौजूद नहीं थे। इसका मतलब ये है कि वो आमिल ठीक कह रहा था। मैंने शायद उसे नाराज कर दिया है जो मेरी मदद कर रहा था। लेकिन मदद करने वाला कौन हो सकता है, ये बात बड़ी अजीब थी। अब मैं फिर दोस्त को ये बात बताए बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए क्योंकि मुझे अपने दिल का बोझ हल्का करना था। जब मैंने उसे अपने घर बुलाया था, फिर दोस्त, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बता, क्या बात है? वो खुद जानने के लिए बेचैन थी। तभी मैं उससे कहने लगी, दरअसल आमिल के पास जिस दिन मैं गई थी, उस दिन के बाद से मुझे अपने तकिए के नीचे पड़े हुए पैसे मिले थे। सच बता, क्या ये उस आमिल की वजह से हुआ है? ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कहने लगी, अरे मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? फिर दोस्त कहने लगी, तू तो बड़ी खुशनसीब है। ये 100 औरतों में से किसी एक के साथ होता है और तू खुश नसीबों में शामिल थी। मैं हैरान रह गई थी। फिर गुस्से से उससे कहने लगी, सच बता कि क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हुआ है। तो फिर दोस्त मुझे सरगोशी में कहने लगी, दरअसल जो पैसे तेरे तकिए के नीचे रखे थे वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि जिन्नात ने रखे थे। उसका ये कहना था कि मेरी आंखें एकदम से ही पलक झपकना भूल गईं। मैं बिल्कुल साकित उसे देख रही थी। वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, वो आमिल ऐसे अमल करता है कि जिन्नात फिर गरीब और मजलूम औरतों की मदद करते हैं। लेकिन वो औरतें बहुत खुशनसीब होती है जो उन जिन्नात को पसंद आ जाए। लगता है कि तू भी उन्हें पसंद आ गई है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए जो वो तेरी मदद कर रहे हैं, और तुझे तो इतने पैसे मिल रहे थे, तो तूने मुझे ये बात क्यों बताई? किसी को भी नहीं बताना चाहिए थी। क्या तूने आमिल को ये बात बताई थी? मैंने कहा कि नहीं,
मैंने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई। लेकिन फिरदौस, मसला दूसरा है। दरअसल मुझे हर रात को अजीब सा महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे मेरे आसपास कोई खड़ा है। किसी का लम्स मैं अपने जिस्म पर महसूस करती हूँ। फिरदौस कहने लगी, सच बता, क्या ऐसा होता है तेरे साथ? और ये तो होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? होने दे, तुझे पैसे तो मिल रहे हैं, यही बहुत है। लेकिन मैंने कहा कि ये गलत है, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। और फिर जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, 5 वक्त की कुरान पाक पढ़ती हूँ, तो फिर वो मेरे करीब कैसे आते हैं? वो आमिल एक घटिया इंसान है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर पहले पता होता कि वो मेरे साथ ये सब करेगा तो मैं कभी भी उसकी बात नहीं मानती। फिरदौस कहने लगी, अरे तूने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, पागल। अगर तुझे पैसे मिल रहे थे तो इसमें क्या बुराई थी? तू रातों रात अमीर हो जाती, होने देती जो तेरे साथ हो रहा था। मुझे देखो, मैं पिछले 2 सालों से ऐसी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस अमल में कामयाब नहीं हो सकी। और तू जाते ही कामयाब हो गई, तुझे तो खुश होना चाहिए था। लेकिन मैंने उसकी बात से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। जरूर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं उस आमिल से जाकर पूछूंगी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो क्या हर औरत के साथ करता है ऐसा? मुझे बड़ा ही अजीब लगा। तो फिरदौस कहने लगी, हाँ, औरतें उसके पास आती हैं, वो खुद अपनी मर्जी से ये सब करवाती हैं। मैंने तुझे पहले इसलिए नहीं बताया कि तू कभी भी उस आमिल के पास मेरे साथ नहीं जाती। दरअसल वो आमिल चाहता है कि मैं उसके पास खूबसूरत औरतें लेकर आऊं, और तुम भी तो बहुत खूबसूरत है नीलम। फिर क्या वजह है कि तू इन सब चीजों से मना कर रही है? मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। मैं कहने लगी, हरगिज नहीं, मैं कभी भी ये नहीं करूंगी, भले मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उसे साफ जवाब दे दिया था। लेकिन अब मैं खुद इस आमिल के पास जाकर पूछना चाहती थी कि आखिर उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया था, और वो कितनी औरतों को ऐसे ही बेवकूफ बना रहा था। यही सवाल पूछने के लिए मैं उस दिन अकेले ही आमिल के आस्थाने पर चली आई थी। वो मुझे देखकर खुश हुआ, फिर कहने लगा, हाँ अब बता, कैसा चल रहा है तेरा अमल? मैं गुस्से से उसे देखते हुए कहने लगी, मुझे तुझसे कोई अमल वगैरह नहीं कराना, सच सच बता, तूने मेरे साथ क्या किया था? तो वो कहने लगा, अरे मैं तो जिन्नात के जरिए तेरी मदद करना चाहता था, बदले में तुझे जिन्नात को खुश करना था। वो रात को तेरे पास आते, अगर तेरे साथ कुछ करते तो तू खामोशी से पड़ी रहती, बस आवाज ना निकालती। जो औरतें आवाज निकालती हैं तो जिन्नात उनके पास से गायब हो जाती हैं। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और उस आमिल से कहने लगी, ये घटिया अमल तू अपने पास रख, मुझे नहीं करवाना अपने साथ ये सब कुछ। जो औरतें करवाती हैं वो बहुत बेवकूफ है। मैं गुस्से से उससे कहती अपने घर वापस आ गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी उस आमिल के आस्थाने पर नहीं जाऊंगी। घर में ही अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगी कि मेरी गैबी मदद अता फरमा, और जो कुछ मेरे साथ हुआ है इसके बदले में मुझे माफ कर दे, जो मैंने तुझे छोड़कर उस आमिल से मदद मांगी। अब मैं रो रो कर फरियाद कर रही थी, कहीं ना कहीं से अल्लाह सबब निकाल देगा। फिर उस दिन शाकिर आकर कहने लगे, मेरा दोस्त कह रहा है कि मेरे साथ पार्टनरशिप पे काम करो, लेकिन सरमाया भी तो मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं। मैं मायूसी से कहने लगी, मेरे पास तो जेवरात भी नहीं है, अगर जेवरात होते तो शायद इस वक्त आपके काम आ जाते। मैं खुद एक गरीब घराने की लड़की थी, ये गुर्बत ही हमें जीते जी मार देती है। आज मैं हद से ज्यादा मायूस हो रही थी। मेरा शौहर तसल्ली देते हुए कहने लगा, अल्लाह ताला ही हमारा आसरा है, इसके अलावा और कोई नहीं। मैंने दिल ही दिल में कहा, बेशक अल्लाह की ज़ात के अलावा और कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं जो इंसान के दिल का हाल जान सके। फिर मेरा शौहर तो गहरी नींद सो गया था, लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे अपना माजी याद आ रहा था, जब 7 बहन भाइयों के साथ हम घर में रोटी को भी तरसते थे। कितने कितने दिन तक घर में सालन भी नहीं पकता था, और कभी कभी तो एक नवाले को भी तरस जाते थे। कभी मैं स्कूल जाती तो लंच टाइम में सारी लड़कियां बैठकर अपने अपने घर से लाया हुआ खाना खाती, जबकि मैं खामोशी से एक दरख्त के नीचे बैठ जाती थी। उस वक्त मेरे दिल की जो कैफियत होती थी वो मैं किसी से भी बयान नहीं करती थी, सिवाय अपने रब के। और आज फिर मुझ पर वही वक्त आ गया था। तभी मैंने अपने पास सोए हुए बच्चों को देखा और मुझे बहुत रोना आया।
मैं दिल से अल्लाह से दुआ करने लगी कि ऐसा वक्त मेरे बच्चों पर कभी भी ना आए, क्योंकि मैंने ऐसा वक्त झेला है, लेकिन ये मासूम कभी भी ऐसा वक्त ना बर्दाश्त करे। यही सोचकर मैं सो गई थी। फिर शाकिर तो फिर से नौकरी की तलाश में चले गए और मैं सुबह उठकर काम काज निपटाने लगी। मैंने दिल में सोच लिया था कि फिरदौस भी ठीक औरत नहीं है, मैं इससे ज्यादा रवाबित कायम नहीं रखूंगी, कहीं ये मुझे किसी उल्टे सीधे जाल में ना फंसा दे। यही सोचकर मैं आज के बाद उसके घर ना जाने का फैसला कर चुकी थी। फिर जैसे ही मैंने अपना बिस्तर उठाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस दिन की तरह आज भी ढेर सारे पैसे मेरे तकिए के नीचे रखे थे। अब मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अब तो मैंने आमिल के पास जाना भी छोड़ दिया था, तो फिर ये नोट किस लिए रखे थे? फिर मैंने सोचा कि मैं इन पैसों को इस्तेमाल नहीं करूंगी, बल्कि मैं इन्हें जमा करती रहूंगी और जाकर उसी आमिल के मुंह पर दे मारूंगी। उसी की वजह से वो जिन्नात रोजाना मेरे तकिए के नीचे पैसे रखते हैं और बदले में वो न जाने मुझसे क्या चाहते हैं। यही सोचकर मैंने उनसे एक भी रुपया इस्तेमाल ना किया, बल्कि सारे पैसे ले जाकर एक बक्से में छुपा कर रख दिए और किसी से भी इस बात का जिक्र न किया। आहिस्ता आहिस्ता घर में राशन खत्म हो रहा था, लेकिन अब शाकिर दिहाड़ियों पर लग गए थे। वो कह रहे थे कि मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन घर में कुछ तो पैसों का आसरा होगा, वरना ये महीना कैसे गुजरेगा और घर का किराया भी देना है। यही बात हम दोनों मियाँ बीवी को परेशान करती थी। मैंने इन पैसों का जिक्र शाकिर के सामने किया ही नहीं, लेकिन पांचों वक्त नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना मैंने अभी भी नहीं छोड़ी थी। कभी अम्मी आती और चुपके से मेरी मदद करके चली जाती। वो मुझे कहती कि मेरी बेटी सब्र कर, सब्र ही सबसे बड़ा फल है। मैं कभी कभी मायूस हो जाती। शाकिर के इतने सारे भाई थे, लेकिन कभी भी उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की थी। हालांकि शाकिर के भाई अच्छे खासे रईस पैसे वाले थे, लेकिन न जाने क्यों उनके दिल इतने पत्थर के हो चुके थे। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वो मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। हर रोज ही मुझे अपने तकिए के नीचे रखे हुए पैसे मिलने लगे थे। लेकिन उस दिन फिरदौस चली आई। आमिल ने तुझे आस्ताने पर बुलाया है। मैं गुस्से से कहने लगी, मुझे नहीं जाना उस मकार शख्स के आस्ताने पर। देख फिरदौस, मैं तुझसे अभी से कह रही हूँ कि तू भी वहाँ जाना छोड़ दे। तो वो बड़े अजीब से अंदाज में कहने लगी, आमिल ने नहीं बल्कि उसके मौक्कल जिन्नात ने तुझे बुलवाया है, तभी तो वो इसरार कर रहा है, वरना मैं तुझे कभी भी बुलाने नहीं आती। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो फिरदौस कहने लगी, उस आमिल ने जिन्नात के जरिए तुझे बहुत सारे पैसे भी दिलवाए हैं, अब तुझे उसका काम करना पड़ेगा। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। ऐसे लग रहा था फिरदौस मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैं उससे कहने लगी कि कैसा काम? तो वो कहने लगी, ये तो तुझे आमिल ही बताएगा, बस तू मेरे साथ चल। अब मैंने बच्चों को फिरदौस की बेटी के पास छोड़ा और खुद उसके साथ आस्ताने पर चली आई। मुझे फिरदौस से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे यूं ब्लैकमेल करने लगेगी। न जाने अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी मैं आमिल के सामने गई तो उसने फिरदौस को बाहर जाने का इशारा किया, लेकिन मैंने अचानक ही उसका हाथ पकड़ लिया था। मैं उस आमिल से कहने लगी, जो भी बात होगी इसके सामने होगी। आमिल ने मुझे घूर कर देखा था, लेकिन मैं भी अपने बात पर डटी थी। तो वो सरगोशी में कहने लगा, इस जिन्नात को तो बहुत पसंद आई है, वो तुझसे मुलाकात करना चाहता है, बता किस दिन तेरी और इसकी मुलाकात करवाऊं। ये सुनकर मैं उछल पड़ी थी। गुस्से से उस आमिल से कहने लगी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं किसी जिन्नात से क्यों मुलाकात करूंगी? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, बच्चों वाली। तो आमिल कहने लगा, इस बात की फिक्र न कर कि तू एक शादीशुदा औरत है तो क्या हुआ, वो जिन्जात भी तुझ पर आशिक हो गया था पहली नजर में, क्योंकि तू बहुत खूबसूरत है और उसने तेरी इसलिए एक ही बार में मदद कर दी थी। अगर तू मजीद मालामाल होना चाहती है तो मेरी बात मान और उससे मुलाकात कर ले, इसमें मेरा भी फायदा है और तेरा भी। लेकिन मैंने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं गुस्से से कहने लगी, मैं सारे पैसे उसके चुका दूंगी, लेकिन अब मैं हरगिज उससे मुलाकात नहीं करूंगी। फिरदौस कहने लगी, देख आमिल की बात मान ले, इसमें बहुत फायदा है, वो तुझे माला माल कर देगा, तू अर्श से फर्श पर पहुंच जाएगी। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और रोती हुई आमिल के आस्ताने से
वापस आ गई। मैंने फिरदौस के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे, मैंने तुझसे दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिरदौस कहने लगी, कैसी बातें कर रही है, मैं तेरी सहेली हूँ, कभी भी तेरा बुरा नहीं सोचूंगी। लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना, और आइंदा अगर तुमने मेरे सामने उस आमिल का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने फैसले पर डटी थी, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं था। अब मैं हिचकियों से रो रही थी। जाए नमाज लेकर बैठ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। अपने दोनों बच्चों को अपने बाजुओं में छुपा लिया। शाम को शाकिर आए, उन्होंने मेरी हालत देखी तो परेशान हो गए। कहने लगे, ये क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतना डरी हुई हो? तो मैं शाकिर से कहने लगी, बस आप हर वक्त मेरे साथ रहें, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, कहीं कोई मुझे अपने साथ न ले जाए। मैं अजीब बहकी बहकी बातें करने लगी थी। फिर 2-4 दिन बाद जब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर मामूल की तरह मैं अपनी जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन मैंने फिरदौस से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लिया था। मैं उससे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती थी। लेकिन फिर अगले दिन जो हुआ वो इससे भी ज्यादा हैरत की बात थी। उस दिन फिर से मुझे अपने तकिए के नीचे ढेरों पैसे मिले थे। मैं उन पैसों को हाथ भी लगाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर से उन सारे पैसों को समेटकर मैंने उसी बक्से में रख दिए जो अब बहुत ज्यादा हो चुके थे। न जाने कौन है जो ये पैसे रखकर चला जाता है। यकीनन वो कोई जिन्नात होगा जो चुपके चुपके मेरी मदद कर रहा है। लेकिन मैं ये सारे पैसे उस आमिल को दे दूंगी और उसकी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। अगर कल को उसने ये सबके सामने बात कह दी कि मैंने अपनी मदद के लिए जिन्नात का काम करने की हामी भरी थी, तो न जाने लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही सोचकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। इसीलिए मैं हर वक्त परेशान रहने लगी थी। मैं बच्चों को लेकर छत पर बैठी थी। शाकिर घर पर थे ही नहीं, वो बेचारे मजदूरी करने लग गए थे। इंतहाई खराब हालत हो गई थी उनकी। पढ़े लिखे इंसान अब मजदूरी पर आ गए थे क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मगरिब का वक्त होने वाला था। मेरे दोनों बच्चे छत पर खेल रहे थे। मैं उन्हें कह रही थी कि नीचे चलो, मैं नीचे जा रही हूँ इनके लिए रोटियां बनाने, लेकिन वो खेलने में मसरूफ थे। तभी मैं उदास सी चारपाई पर बैठी थी कि अचानक मुझे अपने पीछे आवाज सुनाई दी, वो पैसे तुम्हारे ही हैं, मैंने तुम्हारी मदद की है बिना किसी मतलब के। मैं उछल पड़ी थी। अचानक मेरे पीछे ये आवाज किसकी आई थी? मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो सामने एक अजनबी निकाब पोश खड़ा था। उसने काले रंग का लिबास पहन रखा था। मैं कांपती हुई उठ खड़ी हुई। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं कहीं भी कभी भी जा सकता हूँ, मैं इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात हूँ। ये सुनकर तो मेरी रूह के परखच्चे उड़ गए थे। मैं फटी फटी निगाहों से उस जिन्नात को देख रही थी जो किसी इंसानों की तरह दिखाई नहीं देता था। मेरी आंखों में आंसू तह रहे थे। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी मदद मांगी, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी उस आमिल के पास नहीं जाऊंगी। तो वो कहने लगा, तुम इन सब से मुख्तलिफ हो जो औरतें खुद आमिल के पास आकर कहती हैं कि हमें दौलत के बदले में जिन्नात का साथ चाहिए, चाहे वो शादीशुदा हो या कमारी। लेकिन तुम उन सब से नेक हो और तुम्हारी इसी आदत ने मेरा दिल जीत लिया। मैं हैरत से उस जिन्सात को देख रही थी। घबरा कर कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहने लगा, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन पूरे खलूस के साथ, क्योंकि तुम एक नेक दिल औरत हो जो अपने शौहर के साथ वफादार हो। तुम उन औरतों से बहुत मुख्तलिफ हो जो रातों रात माला माल होकर आसमान की बुलंदियों को छूना चाहती हैं। मैं आज तुम्हें एक अहम राज बताने आया हूँ। दरअसल हम जिन्नात का उस आमिल के साथ मुआहदा था। मुझे शुरू से ही इंसानी औरतें अच्छी लगती थीं। मैं उनके साथ बातें करना, उनके साथ वक्त गुजारना चाहता था। इसी मकसद के लिए मैंने उस आमिल से राब्ते कायम कर रखे थे। फिर वो औरतें जो खुद अपनी मर्जी से जिन्नात के पास जाकर उनकी ख्वाहिश पूरी करती हैं, मैं उन औरतों को देखता तो मुझे उनसे अजीब सी घिन आती, क्योंकि वो औरतें बहुत ही खुदगर्ज और मकार लगती, जो अपने शौहरों के होते हुए भी मेरे साथ वफादारी करने के लिए तैयार हो जाती थीं, सिर्फ दौलत को पाने के लिए। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा
तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने ऐसे ही तुम्हारी मदद करना चाही, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता तो तुम्हारी नेक फितरत, तुम्हारे बार बार वजीफा करने की आदत और तुम्हारी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली आदत ने मुझे तुम्हारे करीब ही ना आने दिया। और ऐसा रौब था तुम्हारी शख्सियत में जो मुझे तुम्हारे पास आने से रोक लेता था। मैं चाहकर भी तुम्हारे ऊपर हावी ना हो सका। मैं जब भी तुम्हारी मदद करता तो तुम बहुत घबरा जाती। इस मदद को न जाने क्या समझती। तुम्हें ऐसे लगता है कि शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इंसानी औरतें अच्छी लगती हैं। मैं सिर्फ तुमसे बातचीत करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे पास आने की कोशिश करता, लेकिन तुम्हारी नेक फितरत की वजह से मेरे इरादे कामयाब ना हो सके। लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम परेशान हो, और परेशानी की हालत में न जाने तुम और तुम्हारे शौहर क्या कर बैठे, और तुम्हारे बच्चे भी बहुत मासूम हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी खुफिया मदद की और आइंदा भी करता रहूँगा। अब इन पैसों को इस्तेमाल कर लो। मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाऊंगा। हाँ, लेकिन जब तक तुम्हारे हालात बेहतर नहीं हो जाएंगे मैं तुम्हारी ऐसे ही मदद करता रहूँगा। इसलिए मुझे अपना एक हमराज समझो। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया था, जबकि मैं अभी तक उसकी बातों को सोचती रह गई थी। लेकिन अभी भी मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। मैं उसके पैसों को इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी। लेकिन जब फिरदौस मुझसे मिलने आई और कहने लगी, आमिल ने तुम्हारे लिए पैगाम भिजवाया है, वो तुमसे मिलना चाहता है, मैं उससे कहने लगी, मैं हरगिज उससे मिलने नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे और उस आमिल से सारे राब्ते खत्म कर दिए हैं। तो वो गुस्से से कहने लगी, मैं तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता दूंगी, तुम्हें आमिल की बात माननी होगी। उसने मुझे इसी मकसद से यहाँ भेजा है। अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। आखिर मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैं आमिल के पास चली आई। फिर आमिल गुस्से से कहने लगा, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे सामने उस जिनजात को हाजिर करता हूँ, वही तुमसे निपटेगा। तुम उसकी बात क्यों नहीं मान रही हो? न जाने मेरे साथ क्या करना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद उसने खतरनाक अमल किया और मेरे सामने एक सफेद सी रोशनी चमकी। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। तभी मैंने देखा, ये तो वही जिनजात था जो कल रात मेरे सामने आया था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो आमिल से कहने लगा, इस औरत का पीछा छोड़ दे। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, याद रखना, अब अगर तूने इसे परेशान किया तो मैं तेरा बुरा हशर कर दूंगा। वो इतने खौफनाक लहजे में कहने लगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं हैरान रह गई। आमिल भी सहम गया, साथ ही उसकी मुरीद की भी हालत बुरी हो गई। फिर वो जिनसात कहने लगा, मैं अपनी खुशी से इस औरत की मदद कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत नेक है, और आइंदा भी करता रहूँगा क्योंकि ये बहुत ऊंचे दर्जे पर जाएगी। ये आम औरतों जैसी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अपने शौहर की वफादार है, और मुझे इस बात की खुशी है। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। अब आमिल बिल्कुल खामोश था। फिर वो मुझे कहने लगा, अब कभी भी मेरी शिकायत उस जिनजात से नहीं करना, वरना वो अपने सारे ताल्लुक मुझसे खत्म कर लेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने सामने हाजिर किया था। मैं भी गुस्से से उससे कहने लगी, एक शर्त पर, अगर तुम मासूम औरतों के साथ ये खिलवाड़ बंद कर लोगे तो फिरदौस जैसी न जाने कितनी नादान औरतें हैं जो तुम्हारी चमची बनी हुई है, और वो और औरतों को भी वरगला रहे हैं। इसलिए आइंदा कभी भी किसी के साथ ये गलत ना करना। उसने मुझसे वादा कर लिया था। मैं नहीं जानती थी कि वो वादा सच होगा या नहीं, लेकिन अब मैं घर लौट आई थी। फिर पहली बार मैंने उनके पैसे इस्तेमाल किए और घर में राशन दिलवा लिया। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपने शौहर के साथ मिलकर उन्हें पैसों से कारोबार शुरू किया, और कारोबार में इस कदर बरकत हुई कि घर में खाना पकाती और मेरा शौहर उसे फरोख्त करता। धीरे धीरे मेरे हाथ का खाना इस कदर मशहूर हो गया कि सारे मोहल्ले पड़ोस के लोग कहने लगे कि अब तुम लोग अपनी कोई दुकान या रेस्टोरेंट बना लो, इंशाल्लाह तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा। मैं भी यही चाहती थी क्योंकि अभी भी जिनसात खुफिया तरीके से मेरी मदद कर रहा था। मेरा शौहर हैरान होता, बार बार पूछता कि आखिर तुमने ये कर्जा किससे लिया है, मुझे बताओ, वरना मैं इन पैसों को इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब मैं अपने शौहर से डर गई। मैं उसे असल बात नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें बता दिया कि ये पैसे मैंने एक बैंक से बतौर कर्जा लिए हैं, जो औरतों को कारोबार करने के लिए कर्जा देते हैं। जब मेरा कारोबार चलने लगेगा
तो मैं सारा कर्जा उतार दूंगी। ये सुनकर वो मुतमईन हो गया था, लेकिन अब भी उसकी आंखों में शक था। धीरे धीरे हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे। फिर वो दिन भी आया जब मैं और मेरे शौहर ने अपना कारोबार शुरू कर दिया और अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया। यूं हम मियाँ बीवी दोनों के हालात बहुत अच्छे हो गए और हम अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देने में कामयाब हो गए थे। मैं सोचती कि हमारा बचपन जिस तरह गुजरा है, हम अपने बच्चों को वैसी जिंदगी ना दें जिस तरह तरस तरस कर हमने अपने वालिदैन के घर में जिंदगी गुजारी थी। इसीलिए मैं खूब मेहनत कर रही थी। फिर एक दिन दिल में ख्याल आया कि मुझे उस जिन्सात का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन न जाने वो कहाँ होगा, अब मेरे सामने आएगा भी या नहीं। इसलिए अब मैं दिन रात उसकी मुंतज़िर रहने लगी थी। लेकिन एक रात मैंने अपने हवास बेदार रखे। मैं सोई नहीं थी जब मुझे उसकी परछाई नजर आई। तभी मैंने उसे पुकारा था, मैं जानती हूँ कि तुम वही नेक जन्नात हो जिसने मेरी मदद की थी। आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अचानक ही उसने खुद को मेरे सामने जाहिर कर लिया था। फिर वो कहने लगा कि मुझे बुरा न समझना, मैं नेक जन्नात हूँ और ऐसे ही नेक इंसानों की मदद करता हूँ। इसलिए कभी भी ये ना सोचना कि मैंने लालच या किसी हवस के तहत तुम्हारी मदद की थी। मैं उससे कहने लगी, तुम एक मेहरबान और नेक जन्नात हो। मैं जानती हूँ कि तुम दूसरी मजलूम औरतों की भी ऐसे ही मदद करते हो। वो आमिल जिस जिस औरत को तंग करता है, तुम उसकी मदद करो तो वो उस आमिल के पास जाना छोड़ देगी और सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगेगी, जो किसी न किसी जरिए से इंसानों की मदद कर ही देता है। ये बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। फिर कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी बात मेरे दिल को छू गई है और मैं अब उस पर अमल करूंगा। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया था और मैं अब फिरदौस से मिलना चाहती थी। न जाने वो किस हाल में होगी। वक्ती तौर पर मैंने उससे कता ताल्लुक तो कर लिया था, लेकिन वो आज भी ऐसी ही परेशानियां झेल रही थी। जाहिर है जिसका भरोसा खुदा पर नहीं बल्कि किसी दूसरी जात पर हो तो वो सारी जिंदगी ऐसे ही परेशान रहता है। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे राजी किया था कि वो आमिल के आस्थाने पर आना जाना छोड़ दे। मैंने उसे अपने हाँ ही नौकरी दे दी थी, खाना पकाने की, जहाँ पर वो बहुत मेहनत कर रही थी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसका शौहर इंतहाई आवारा और कामचोर इंसान था। वो ज्यादा बच्चों को पालने और अपना घर चलाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। अब मैंने फिरदौस को भी अपने साथ रख लिया था क्योंकि उसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। मैं उस जैसी अच्छी सहेली और उस नेक जन्नात को कैसे भूल सकती थी। ये दोनों सारी जिंदगी ऐसे ही मेरे जहन में मौजूद रहेंगे। इंसान अपने ऊपर किए गए एहसान कभी भी नहीं भूलता अगर उसके अंदर इंसानियत हो, और मैं भी अपने बुरे वक्त को कभी भी नहीं भूल सकती थी। और इस बुरे वक्त से निकलने में मेरी जिसने मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि वही नेक जिन्नात था, जो न जाने किस इरादे से मेरी जिंदगी में आया था, लेकिन उसने मेरी नेक फितरत देखकर मेरी ऐसे मदद की कि मुझे हर दुख से निकालकर खुशियों के मीनार पर खड़ा कर दिया। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।